اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے منگایا، اس کی تفسیر میں بتا رہا ہوں، کیسے اترا، کیوں اترا، کھانے میں کیا تھا، دسترخوان کا کلر کیسا تھا، پھر جو لوگ کھائے وہ کیا کرنے لگے، جو لوگ انکار کیے اس کے لیے کیا ہوا۔ اب اس کی تفسیر یعنی تفصیلاً گفتگو اب ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان اتار دیا، وہ دسترخوان کا رنگ تھا لال۔ سبحان اللہ۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ مائدہ کی 2 آیت پاک ہم نے پڑھا۔ سورہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اور سورہ مائدہ 6واں پارہ سے شروع ہوتا ہے اور 7واں پارہ کے آخری سورہ مائدہ کا آخری صفحہ چل رہا ہے، اور آج درس قرآن بھی نہیں ہوا، تو انہی دونوں آیت کریمہ کو ہم نے یہاں پر پڑھ دیا۔ قرآن کریم کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی؟ یاد کر لو۔ 114 سورتوں میں اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مائدہ۔ ہر سورہ کا نام جو بھی رکھا گیا جس میں ایک خاص چیز کا تذکرہ ہوا، اسی خاص تذکرہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ دیا۔ دسترخوان کا تذکرہ، ایک عجیب دسترخوان، اور یہ دسترخوان اترا تھا آسمان سے۔ کہاں سے اترا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے سوال کیا تھا، اے عیسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ہم لوگ چاہتے، اس سے پہلے والی آیت میں آتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم لوگوں کے لیے دسترخوان اتار دے جس میں کھانے کی چیز ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ سب سوال کر رہے ہو؟ تم لوگ مسلمان ہو، مومن ہو؟ تو کہا تھا، اے عیسیٰ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کھا کر کے ہم لوگ اطمینان ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اور اطمینان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم گواہ بھی ہو جائیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط بولنے والوں، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، جادو کا معاملہ دنیا میں چلتا ہے، آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے ہم لوگ یہ معاملہ اٹھائے ہیں تاکہ اللہ سے کہیے اور وہاں سے دسترخوان اتار دے، تاکہ ہم سب کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے اور ہم گواہ بھی بن جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہیں۔ تو دعا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دعا کی آیت ہم نے پڑھا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا، عرض کیا، اے اللہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار دے۔ سبحان اللہ، کیا اتار دے؟ خالی دسترخوان نہیں، مفسرین کہتے ہیں بھرا ہوا دسترخوان ہونی چاہیے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے۔
हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, व आयतम मिंक, और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और तू हमें रोजी दे, तू बेहतर रोजी देने वाला है। और अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुम पर उतारने वाला हूँ ऐ ईसा, तेरी दुआ है, मैं उतारने वाला हूँ दस्तरखान। अल्लाह ने फौरन सुन लिया। इधर ईसा अलैहिस्सलाम का दुआ करना था, अल्लाह ने जवाब दे दिया। फमन यकफुर बअद मिनकुम, तो जो इसके बाद इनकार करेगा, अल्लाह समद, अल्लाह ने बड़ी धमकी दिया, जो इनकार करेगा इस दस्तरखान का, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो मैं ऐसा अज़ाब दूंगा, ऐसा अज़ाब दूंगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दस्तरखान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से मंगाया, इसकी तफसीर मैं बता रहा हूँ। कैसे उतरा, क्यों उतरा, खाने में क्या था, दस्तरखान का कलर कैसा था, जो लोग खाए वो क्या करने लगे, जो लोग इनकार किए उसके लिए क्या हुआ। अब इसकी तफसीर यानी तफसीलन गुफ्तगू अब होगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तरखान उतार दिया। वो दस्तरखान का रंग था लाल। सुभान अल्लाह। आज हम लोग दस्तरखान काला, नीला, सादा सब रखते हैं ना। बुजुर्गान दीन का दस्तरखान आप जब देखेंगे तो लाल ही पाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं कि लाल दस्तरखान बेहतर है। लाल दस्तरखान, जो लोग सुन रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए। नाचीज और खताकार की तकरीर इस बुनियाद पर होती है कि कुछ बातें हम लोगों को सीखने और सिखाने का मौका मिल जाए। दस्तरखान कैसी होनी चाहिए? लाल। अल्लाह का कलर सब है, पीला भी उसी का है, नीला भी उसी का है ना। आसमान भी नीला है, उसको लाल बनाना था, क्या नीला बनाया? हरा बनाना था, सादा बनाना था। मगर ये अल्लाह की शान है कि आसमान में तरह तरह का कलर आते रहता है। एक से कलर देखो, इतना खूबसूरत आसमान, कौन ऐसा पचाड़ा और पेटिंग कर सकता है दुनिया में? ऐसा वो कलर का आसमान बना करके रखा है। सारे कलर अल्लाह ताला के यहाँ हैं, मगर अल्लाह की हिकमत है कि लाल दस्तरखान उतारा। जब अल्लाह ने कलर को पसंद कर लिया है तो हमें भी यही कलर अमल होगा कि नहीं होगा? दस्तरखान उतरा। इतवार का दिन था। कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन है? और ये दस्तरखान उतरा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जो दुआ किया था, इतवार का दिन था। इतवार के दिन आज भी पूरी ईसाइयत में खुशी मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ईसाई हजरात क्या करते हैं इतवार के दिन? जोर से बोलो, इधर गौर से सुनना। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? खुशी नहीं, खुशी। क्या बोलेगा? खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत तकरीबन 100 साल तक रही है मुसलमानों के बाद। उन्हीं लोगों ने इतवार की छुट्टी मनाया। उन्हीं लोगों ने आज भी इतवार के दिन पोस्ट ऑफिस बना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि हमारे लिए ईद हो जाए, अगलों के लिए भी, पिछलों के लिए भी। आज पूरी दुनिया इतवार को क्या मनाती है? खुशी मनाती है, ईद मनाती है। जब दस्तरखान उतरा इतवार के दिन, ईसाइयों के लिए खुशी का दिन हो गया, ईद का दिन हो गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कौन से दिन? पीर के दिन। इसीलिए पीर के दिन भी मुसलमानों को याद रखना चाहिए और उस दिन रोजा भी रखना चाहिए और दीन की तरफ निस्बत करते हुए खुशी का इजहार भी करना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईद उन नबी मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। मगर हफ्ते के एतबार से हर सोमवार को हमारे लिए ईद है। हर सोमवार को हमारे लिए ईसाइयों ने एक दस्तरखान देखा है तो आज तक वो खुशी मना रहे हैं। हमें भी पीर को नहीं भूलना है, हमें भी सोमवार को याद रखना है और खुशी का इजहार करना है। और उस दिन रोजा भी रखना सुन्नत है और उस दिन खुशी का इजहार भी करना चाहिए।
कोई मना नहीं है। तो ईसाइयों के लिए उस जमाने की ईसाइयों ने भी खुशी मनाया, आज भी ईसाई खुशी मना रहे हैं, है ना, मना रहे हैं ना। मगर हिंदुस्तान में आज हर जगह इतवार मनाया जाता है। सारे गैर मुस्लिम लोग भी इतवार मना रहे हैं। अगर गैर मुस्लिमों को पूछ दिया जाए तुम इतवार क्यों मना रहे हो, तो कोई जवाब वो यही कहेंगे सरकारी छुट्टी पहले से आ रही है, पर्स पहले से आ रही है, सरकारी छुट्टी पहले से आ रही है। मगर ये हकीकी छुट्टी ईसाइयों के तरफ से होती है। अगर कुफार मुशरिकीन को इस पर भी सोचने की जरूरत है कि इतवार कैसे मिला, कहां से मिला। मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, तो आज तक ईद मना रहे हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो आयतम मिनका, और तेरी तरफ से ये निशानी होगा। दस्तरखान उतरा था, उसमें 7 रोटियां और 7 मछलियां थी। सुभान अल्लाह, कितने? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कई हजार लोग खाए 7 रोटी और 7 मछली। और जब दस्तरखान उतरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और खूब रोए, या अल्लाह क्या तेरी शान है कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया। रोने लगे ईमान वाले खुशी से। इंसान गम से भी रोता है और खुशी से भी रोता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी से रोते रोते भी मर जाता है ना, और गम से भी इंसान मर जाता है। खुशी से भी इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। सुनीली बात है भेड़ा सिंह के भाई के बारे में। वो भेड़ा सिंह मरहूम कामयाब हो गए तो उनके बड़े भाई शायद खुशी से मर गए। सुनी बात है, सही या गलत ये तो नहीं पता है, मगर मिट्टी देने के लिए लोग गए और इनके भाई वहीं खुशी हो गई कि मेरा छोटा भाई क्या हो गया, कामयाब हो गया। वो खुशी से मर गया। और एक भाई ऐसा भी होता है जो जल जल के रहता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। एक भाई जलता है, एक भाई खुशी से दम तोड़ दिया, यार मेरा छोटा कामयाब हो गया, खुशी से जान दे दिया। ये सुनी हुई बात है। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मिल्किल्लाह। हजारों लोगों ने 7 रोटी और 7 मछली में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दिया कि कई हजार लोगों ने खा लिया। ईमान और मजबूत हो गया उन लोगों का। और कहा तुम मेरे ईसा को जादूगर बोलते थे, आज तुम ईसा को देख लो कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को ऐसा सुना है कि हमने जो मांगा है ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुनने के बाद अल्लाह ताला ने दस्तरखान उतार दिया है और आज हम लोग खा रहे हैं। और लोगों ने कहा था उतार दे, मुफस्सिर कहते हैं एक मर्तबा उतार दे परवरदिगार, ईमान मजबूत हो जाएगा, हम गवाह हो जाएंगे तेरे नबी की शहादत देने पर और तुझे भी मानने पर हम गवाही देते हैं। मगर अल्लाह का ये करम हुआ, मुफस्सिर फरमाते हैं 40 दिन तक ये दस्तरखान उतरता रहा और लोग खाते रहे पीते रहे। अब वहां भी लोग थे, ईमान वाले भी थे और मुनाफिकीन भी थे। ईमान वाले तो शिकमशेर हो गए, खा पी के इत्मीनान हो गए, ईमान उनका मजबूत हो गया। और मुनाफिकीन जो लोग थे, हर दौर में मुनाफिकीन रहते हैं, हर दौर में सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे बोलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे ही हुआ। अल्लाह समद। हम और आप किस खेत के मूली हैं, नबी की भी शिकायत करने वाले लोग हो गए। इसीलिए हम सबको डरना नहीं चाहिए। मुनाफिकीन हर दौर में रहे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। मगर दीन का काम इंसान को मजबूती के साथ करना है और अल्लाह उसके रसूल के ऊपर भरोसा करके करते रहना है। मुखालिफत से डरना नहीं है, किसी की आंख दिखाने से भी नहीं डरना है, किसी की दादागिरी से भी नहीं डरना है, किसी की गुंडागर्दी से भी नहीं डरना है। क्यों? जिसके अंदर अल्लाह हो जाता है और जिसके अंदर अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत हो जाती है, वो किसी से घबराता नहीं है। वो यही जानता है अल्लाह बेशक इज्जत और अल्लाह जान की हिफाजत करने वाला है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए लोग पहुंचे थे, मगर जो प्लानिंग बनाया था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में आ गया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया
اور बदमाश का रूप ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिया, लोगों ने उसी को फांसी दे दिया। मुनाफिकीन का अंजाम देखिए। वो चीखता रहा, अरे मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। कहा तू ही ईसा है, तू ही ईसा है। खूब मारा पीटा और उसको फांसी में भी लगा दिया। बाद में मुनाफिकीन ढूंढने लगे, फलना कहाँ है, फलना कहाँ है, फलना कहाँ है। तो फांसी के फंदे पे चढ़ चुका ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पर आराम कर रहे हैं। जो आएंगे कुर्बे कयामत में, कयामत से पहले पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दीन का काम करेंगे, जिनका जो तो नबी बन करके आए थे, मगर आप उम्मत मुस्तफा बन करके आएंगे और ऐलान करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उनका दौर था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, मगर जब अब आएंगे उनका नारा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस दीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान में आ जाता है। अल्लाह ने धमकी दिया था, ऐसा मैं तेरी दुआ को सुन लिया, मैं दस्तरखान उतार दूंगा। दस्तरखान उतरा। फिर अल्लाह ने यह भी कहा था कि जो इनकार करेगा ऐसा अजाब दूंगा जो दुनिया में किसी को भी अजाब नहीं दूंगा, इनको दूंगा। अल्लाह, ऐसा अजाब मजाक बना दिया था उस दौर के मुनाफिकों ने। ईसा अलैहिस्सलाम को इतना सब कुछ जानने के बावजूद कहा ये तो जादू है, जबकि दुनिया कहती है कि जादू का मामला सिर्फ जमीन ही में चलता है, दुनिया ही में चलता है, आसमान से नहीं चलता, आसमानी दुनिया में नहीं चलता। मगर काफिरों ने, मुनाफिकों ने कहा कि ये तो जादू है, ये मछली भी जादू, ये रोटी भी जादू। अल्लाह ने कहा था अगर नहीं मानोगे तो ऐसा अज़ाब दूंगा जो किसी को भी नहीं दूंगा दुनिया में। जिन लोगों ने इनकार किया था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं रात में खाए पिए सोए और सुबह को देखा गया कि सूअर बना दिए गए। अल्लाह समद, क्या बना दिए गए? खिंजीर। जानवरों में सबसे बदसूरत जानवर क्या है? सबसे नापाक जानवर क्या है? अब बताइए अल्लाह का अज़ाब कैसा होता है? मैंने आंख दिया था नबी को पहचानने के लिए, मैंने कान दिया था हक को सुनने के लिए, मैंने दिल और दिमाग दिया था हक की पहचान के लिए, मगर तुमने आंख और दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने उनको ऐसा अज़ाब दिया कि सूअर बना दिया। दुनिया में देखा कि वो गलाजत खाते थे, मैले खाते थे और फिर इधर उधर मारे फिरते थे, रोते थे। लोग कहते थे या अल्लाह ये क्या हो गया, ए ईसा, ए अल्लाह के नबी ये क्या हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मैंने पहले ही कह दिया था, बुजुर्गों की बद्दुआ से बचना बहुत जरूरी है। नबी की दुआ और वली की दुआ लग जाती है और बद्दुआ भी जी। सूअर बना दिए गए, 3 दिन तक रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे। फिर अल्लाह ने उनको मौत दे दिया। क्या दे दिया? मौत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अजाब दिया, सूरत चेंज कर दिया, उसको दुनिया ने फिर उसकी नस्ल को नहीं बढ़ाया, खत्म कर दिया, खत्म हो गया, उसकी नस्ल वहीं तक रह गई, खत्म हो गई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस